Hello students. Now on last turn we have studied about the breathing process, that how does the breathing occur in human beings, right? So in this video we are going to discuss that how the respiration differ from the breathing and respiration are similar process or the differ process, right? तो ब्रीथिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था. तो दैट वाज द थिंग ऑफ लास्ट टर्न. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द energy releasing process that is called the respiration. तो you can watch here easily that कि ब्रीथिंग के बाद इट मीन्स रेस्पायरेशन इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग के बाद जैसे कि ब्रीथिंग में हमने स्टडी किया कि ब्रीथिंग में वी टेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2, राइट. तो वाई वी डू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो दैट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग द ऑक्सीजन इज for breaking down this glucose molecule. Okay, you can watch here if we take the oxygen, the purpose of taking the oxygen is breaking down this glucose molecule. The glucose molecule क्या है? That is the part of the food, because we know already that in human body the rich source of the energy is only the food. So glucose is a type of the food. So when we take the oxygen, so that oxygen will help to release the energy, that is called respiration. So you can say here कि for releasing the energy oxygen is essential, right? So for breaking down the glucose molecule the oxygen is essential, and that's why the energy is released. So you can say कि respiration is energy releasing process. The glucose is breaking down only in presence of oxygen and also in absence of oxygen. Remember here कि glucose is broken down in presence or absence of oxygen. So in presence and absence of oxygen the process is called respiration, right? इसी को हम respiration बोलेंगे कि जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या absent हो, और दो प्रेजेंट या absent होने पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ही respiration है, right? तो you can watch easily here and you can understand here. Okay, again you can see and watch in this video, like you can watch in this video. So here we are talking you that this is a energy releasing process, right? You can watch here easily, like this is. तो दिस इज़ द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड टूटता है तो वी विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. क्लियर? Like you can see here, glucose and energy. Glucose will give rise to the energy. That is possible only when the oxygen is present or also in absence of oxygen, right? So you can watch here easily. This is called aerobic respiration. Why do we call here? Now this is also anaerobic respiration without air. I have told you earlier that glucose is broken down in presence or absence of oxygen. So when oxygen is absent, okay, when oxygen is absent, that is called anaerobic respiration. Clear? So also in absence of oxygen the energy is reduced, but anaerobic respiration is very fast process, right? So you must have to remember, but aerobic respiration is more beneficial. But why and how the aerobic respiration is more beneficial? Because more energy is produced in aerobic respiration but very less energy produced in anaerobic respiration. And the harmful effect of anaerobic respiration is also that the lactic acid is also be formed. When the oxygen is absent, the glucose is incompletely broken down, right? And that will also give rise to the formation of the lactic acid in our muscles. ठीक है, जैसे लॉन्ग टाइम तक अगर हम वर्क कर रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं तो उस समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो इन absence ऑफ ऑक्सीजन द फूड मॉलिक्यूल will be incompletely broken down and that will release a very less amount of energy along with the formation of this lactic acid. Okay, so because of lactic acid we will feel tiredness in our muscles. Our muscles will get cramp. So because of accumulation of this lactic acid, and that is formed
ओनली इन absence ऑफ द ऑक्सीजन और व्हेन द ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे हम लॉन्ग टाइम तक कोई वर्क कर लें, थकान हो जाती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो फूड की जो एनर्जी है वो बहुत कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यू कैन सी हियर easily again. Now in plants and microbial cells, okay, you can watch here. In plants and microbes, they will also require the energy for survival. So in some plants and microbial cells, in absence of oxygen, glucose will give rise to the production of alcohol also, right? You can watch again like this. You can watch again you can watch like this. Okay, so you can watch here कि प्लांट्स और माइक्रोबियल सेल में जो एनर्जी है, तो इन केस ऑफ द प्लांट एंड सम माइक्रोब्स द एथनॉल विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ माइक्रोब्स में या प्लांट्स में अगर अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, C2H5OH, यानी कि एल्कोहल भी बनेगा और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे है कि एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस में भी प्रोड्यूस हो सकती है। व्हेन द ऑक्सीजन प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? ओके, if you have any clarification then you can discuss with me through the WhatsApp, through the call. Now in next topic, this is the topic where we will know that how the lower organism respire. जैसे कि अमीबा you studied in 9th class कि what is the amoeba, तो you can watch here easily कि in amoeba the cell surface is there, right? You can watch again like this, okay? So you can watch again this. In this amoeba, this is the cell surface of the body. So in this amoeba this is the cell surface of the body. Okay, so what happened कि through this sulfur, because we have to know that, we will know that कि in amoeba there is no respiratory organ for the respiration. Okay, so through the cell surface the oxygen will get enter into the body. Like you can see here कि ऑक्सीजन सेल सरफेस के जरिए बॉडी के अंदर जाएगी, एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दी फूड, अमीबा भी अपना फूड लेते हैं तो वहाँ पर भी फूड टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको ध्यान रखना है कि जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो वहाँ पर CO2 भी ज़रूर बनता है। ठीक है, तो CO2 व्हेन फॉर्म्ड आफ्टर द एरोबिक रेस्पिरेशन दिस विल ऑल्सो बी डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी। ये CO2 बाहर निकल जाती है बॉडी की। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म इन अमीबा of the respiration ki how does respiration takes place in amoeba. Now you can watch again, clear? amoeba के बारे में आप क्लियर समझ गए होंगे रेस्पिरेशन में. Now this is the example of other organisms that how the grasshopper respire also and the cockroach. So you will see here that in cockroach and grasshopper, okay, the special structures are present over there. These special structures are called spiracles, यानी कि बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं. ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. किसकी बॉडी के ऊपर? इन इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर. और उन्हीं पोर्स से रिलेटेड कुछ ट्यूब्स होती हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स होती हैं ना, वैसे ही इन इंसेक्ट्स में भी ट्यूब्स होती हैं. एंड दोज ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्रैकिया. ठीक है, उन ट्यूब्स को हम ट्रैकिया बोलते हैं. एंड दीज ट्यूब्स और ट्रैकिया ओपन थ्रू दीज स्पाइरिकल्स. और ये छोटे छोटे पोर्स जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलेंगे उनके जरिए इन्वायरमेंट में खुलती हैं, इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहती हैं. और इन्हीं स्पाइरिकल्स के जरिए द ऑक्सीजन विल गेट एंटर इनटू द बॉडी. लाइक यू कैन वॉच हियर लाइक दिस. Okay, so in this video, okay, this is the spiracles. Like you can watch here, spiracles, these are the pores, and this is showing that how does oxygen will enter into these trachea, because trachea are connected to these pores, those are called spiracles. ठीक है, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और ऑक्सीजन क्या करेगी? वही वर्क करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी. और एनर्जी रिलीज में यू नो दैट CO2 इज ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड. तो CO2 बाहर निकल जाएगी. CO2 इन्वायरमेंट में बाहर आ जाती है और एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद. ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे. एंड दिस इज़ द अर्थवर्म. अर्थवर्म कैसे करेगा? अर्थवर्म की स्किन मोस्ट होती है, तो अर्थवर्म अपनी बॉडी से ऑक्सीजन लेगा और पूरी बॉडी में उसके नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का. ठीक है, यू कैन वॉच दिस लाइक दिस. ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ब्लड होता है.
ठीक है। तो ऑक्सीजन इस तरह से वहाँ उसकी बॉडी में पहुँच जाएगी, लाइक यू कैन वॉच हियर, ठीक। ये दिस इज़ द वे दैट ऑक्सीजन विल एंटर इनटू अर्थवर्म बॉडी थ्रू द मॉइस्ट स्किन। और यू नो दैट जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो CO2 प्रोड्यूस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, एंड दैट विल बी रिलीज आउट, कम आउट थ्रू द बॉडी सरफेस फ्रॉम द सेम सरफेस ऑफ बॉडी। ओके, तो अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन होगा। दिस इज द फिश। You know that in these all organisms you must have to remember that lungs are not present, but in our body lungs are present for the respiration. This is the main difference. So gills, these are not the lungs. Gills are the very simple structures for the respiration in aquatic organism in the fish. Okay, so this is the way that how does fish टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम होती है कंपेरेटिवली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के। जो हम लोग एयर इन्वायरमेंट में रहते हैं तो एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी, जबकि जो फिश है, फिश वाटर में रहती हैं, वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पर ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द, तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन वाटर द ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लेस देन द इन्वायरमेंट वेयर वी रेस्पायर और टेक द ऑक्सीजन। हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इजीली ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन जो वाटर में ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत लेस होता है, तो इसी वजह से द ब्रीथिंग रेट इज फास्टर। यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन गिवन क्वेश्चन कि ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ हैविंग द लेस ऑक्सीजन इन द वाटर। ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दीज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली द फिश। तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स के थ्रू ही ये ऑक्सीजन यहाँ एंटर करती है बॉडी में, और वही सेम प्रोसेस कि जब ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी तो CO2 प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, एंड दैट विल ऑल्सो बी डिफ्यूज आउट फ्रॉम द गिल्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पायरेशन प्रोसेस, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन बोथ आर डिफर, ठीक है। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन दोनों ही डिफर प्रोसेस हैं, दोनों सेम नहीं है। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन आर डिफर, राइट। ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन आर डिफर। कैसे डिफर हैं? क्योंकि रेस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पायरेशन, दिस इज केमिकल प्रोसेस। रेस्पायरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। और जबकि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस, राइट। एंड आई थिंक दैट, आई होप कि यू हैव नोन वेरी वेल अबाउट एरोबिक respiration, anaerobic respiration, okay, and also the difference between breathing and respiration, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपने डिफरेंस भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ओके। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन डिस्कस विद मी, ओके। थैंक यू।